Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. Today I will talk about National Policy of Education 1986. So yesterday we talked about Kothari Commission and its recommendation. So today I will talk about National Policy of Education 1986. In the post-independence period, reconstruction of education system was the major concern of the government of India. The National Policy of Education (NPE) is a policy formulated by the government of India to promote education among Indians both in urban and rural area. तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसका मेन जो मोटो था वो था कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया यानी जो सिटीज़ में लोग रहते हैं और जो विलेज के जो पीपल है उनके लिए अच्छा सा एजुकेशन दे और देर आर नॉट सफिशेंट schools and there are not sufficient colleges in village area, so they just want to make good colleges and good schools to provide good education. So based on the report and recommendation of the Kothari Commission, the government of India announced the National Policy of Education. The first NEP was promoted by Indira Gandhi 1968 and the second by Rajiv Gandhi in 1986. तो ये हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट NEP है वो प्रमोट की थी इंदिरा गांधी ने, विच इज़ इन 1968, और जो सेकेंड NPE है वो प्रमोट की थी राजीव गांधी ने, वो 1986 है, ठीक है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022, तो वो सारे रिवाइज ही पॉलिसी है, बट जो फर्स्ट जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी तो दैट वाज दिस, एंड आफ्टर इसके बाद फिर से ये रिवाइज बन के नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई। फिर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो 2022 में आई थी, तो इट्स ऑल one policy, but they made changes and they just want to make change in this policy, so that's why they make this policy. So you just have to remember this ki this policy, first policy is National Policy of Education and it's 1986, and after that they revised this policy, and after it's in 2022. If I repeat my sentence, please bear with me, because I really have to reconstruction this, and I think that if I repeat and you heard so many times, so it will helpful for you and as well me. So that's why I am repeating the sentence. Okay, and after the national policy, opportunity will be provided by to the youth, housewives, agriculture and industrial works and professional to continue the education of their choice at the pace suited them, and the future thus will be the direction of open and distance learning. यानी जो ये NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसका मेन मोटो था कि जो एग्रीकल्चर में काम करते वो लोग, फिर हाउस वाइफ है वो, एंड जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं SC ST, उन लोगों को ज़्यादा एजुकेशन दे और उन लोगों को स्कॉलरशिप दे और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि वो लोग इतना पढ़ना ही नहीं चाहते थे और उन लोगों को इतना वो स्कोप नहीं मिला, यानी कि स्पेस नहीं मिला। इसलिए ये जो नेशनल पॉलिसी है उसने रेकमेंड किया कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस एंड यू हैव टू बी लाइक दिस कि यू हैव टू गिव देम स्पेस, एटलीस्ट you can give them one chance to think okay we can do, and they give and they make so many efforts to make them to study, otherwise people won't study, and they give scholarship also. So it's a very initiative and I really appreciate this. And after this important recommendation of this, so orientation of teacher should be continuous process
teacher education to upgrade selected secondary teacher training institution, emphasizing inseparability to pre-service and in-service कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस यानी कि जो बीएड और एमएड होता है उसमें जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको हम प्री सर्विस बोलते हैं, और जो इन सर्विस है, इन सर्विस यानी कि एक बार आपकी जॉब लग गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्कूल में टीचर या प्रोफेसर बन गए तो आप इन सर्विस आ गए, तो वो जो एजुकेशन है उसमें कैसे चेंजेस लाने चाहिए और उनके सारे जो प्रोग्राम्स है वो भी कंडक्ट करने चाहिए, उसका ऐसा रिकमेंडेशन था। एंड further to establish the National Council for Teacher Education at the national level, which will have the power to accredit institution of teacher education, provide guidance regarding curriculum and method। तो जो NCT है उनको ये अच्छे से उसको गाइडेंस दे, और फिर उनको जो भी ऐसे क्वेरीज आ रही है करिकुलम रिलेटेड, यानी सिलेबस कैसा होना चाहिए, फिर उनका जो मोटो है, गोल्स है, वो कैसे रहने चाहिए, फिर मेथड्स यानी कि यू can teach in various method. For example, you can teach student by activity based learning and discussion method, and there are lot of methods. So ये सारी methods हमें कौन सी यूज़ करनी है वो भी ये लोग बोलते थे कि आप ऐसे सर्च करो और आप देखो कि एजुकेशन में आगे और अच्छा कैसे कर सकते हो। ये जो पॉलिसी है NPE, उनका मोटो यही था कि जो एजुकेशन है उसको अच्छे से और उनमें जो स्किल्स है और अच्छे से एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए उसकी बात की गई है। And further upgrading the select teacher training college to complement the work of SCRT। तो जो SCERT है वो स्टेट लेवल का होता है, एंड NCTE यानी वो नेशनल लेवल का होता है। तो इसको हमें प्रमोट करना है, और जो स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। और उसमें भी हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम है वो इंक्लूड करने, और करिकुलम को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं वो हमें देखना है, और हमें आइडियाज़ भी देने हैं। एंड मेजर सजेशंस वो थे कि द फर्स्ट डिग्री कोर्स ऑन टीचर एजुकेशन शुड नॉट गिवन ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस मोड, एंड सेकेंड, मोर इंस्टीट्यूशन शुड बी एनकरेज टू इंट्रोड्यूस 4 years integrated courses in the pattern of regional colleges of education। and key highlights of NPE, तो एक्सपैंड स्कॉलरशिप टू ऑल कैटेगरीज, यानी स्कॉलरशिप हर जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको सबको देनी है। प्रमोट एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया, एडल्ट एजुकेशन यानी कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं और किसी वजह से उन लोगों ने एजुकेशन है वो बीच में से छोड़ दिया है, और फिर उनको ऐसे लगता है कि ओके आई रियली वांट टू लर्न दिस बट नाउ इट्स नॉट माय एज एंड आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन दिस स्कूल और कॉलेज। सो इट्स लाइक कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो आप किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये इनिशिएटिव था NPE के द्वारा, और उन्होंने ऐसा बोला कि एडल्ट एजुकेशन है वो स्टार्ट करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। एंड एम्प्लॉइंग मोर टीचर्स फ्रॉम SC एंड ST कम्युनिटी, यानी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देनी है और उनको भी स्कॉलरशिप देनी है, यानी वो ऐसे सोचे कि ओके वी कैन डू एंड वी डू हैव दिस फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट विल पे एंड दे विल गिव अस सम स्कॉलरशिप एंड सम स्टाइपेंड सो वी कैन स्टडी। and provide incentive for poor families to send their children to school regularly। और जो लोग बहुत गरीब है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है ताकि उनके बच्चे हैं वो रेगुलरली स्कूल अटेंड कर सके। टू डेवलप द न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल एंड प्रोवाइडिंग हाउस एंड सर्विसेज फैसिलिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन। द NEP कॉल्ड फॉर चाइल्ड सेंटर अप्रोच, यानी चाइल्ड सेंटर अप्रोच की जो चिल्ड्रंस है उसको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है और वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को मतलब अच्छे से समझ पाते हैं, वैसी मेथड्स को हमें समझाना है और वैसी मेथड से हमें पढ़ाना है।
Under this policy, open university system was expanded with the Indira Gandhi National Open University. The policy was also recognized by rural university model based on the philosophy of Mahatma Gandhi. It encouraged economical and social development at the grassroots level in rural area. तो जो गांधी जी ने ऐसे बोला था कि जो सारे मेरे भारत देश के जो सारे जो बच्चे हैं उनको सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, और एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि उसको पाके कोई भी इंसान है वो गरीब से भी वो मतलब कुछ भी बन सकता है. तो एजुकेशन इज़ लाइक कि वो आपको रंग से आपको राजा बना सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. बट इन दिस टाइम एजुकेशन इज़ लाइक बिजनेस. बट बिफोर गांधी जी ने जब हमारे गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, तभी उन्होंने ये सोच के ही उसकी स्थापना की थी कि जो रूरल एरिया यानी जो विलेज से जो लोग आते हैं और जो लोग SC ST कास्ट से आते हैं वो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. तो उन्होंने ऐसा बोला कि आई रियली वांट टू मेक दिस चेंज एंड आई रियली वांट टू मेक माय इंडिया और फॉर माय पीपल. तो तब उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, और आज भी गुजरात विद्यापीठ में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसे जो शेड्यूल कास्ट से और SC कास्ट से आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है. बट दिस टाइम आई फील कि देर इज़ सम चेंज एंड आई फील सैड फॉर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड द फीस. सो आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग कि ये जो गुजरात विद्यापीठ है वो महात्मा गांधी ने बनाई है. तो फिर आप खुद के फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसे ऐड नहीं कर सकते, और फॉर सेक ऑफ हिज आइडिया, क्योंकि वो विद्यापीठ है वो, और जो विद्यापीठ का जो सारा मतलब वहाँ का पूरा जो एरिया है वो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को दिया था और मुफ्त में ऐसे दे दिया था कि ओके आप ऐसे करना चाहते हो तो हम भी, जो जिनके पास बहुत अच्छी ज़मीनें थी और वो लोग बहुत बड़े ज़मींदार थे, और उस टाइम पे ज़मींदार लोग होते थे वो किसी को कुछ भी नहीं दे देते थे, पर गांधी जी को उन्होंने फ्री में सारी ज़मीन दे दी. और गांधी जी ने ऐसा सोचा कि चलो जो गाँव के लोग हैं और जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और SC कास्ट से आते हैं उन लोगों को भी मुझे एजुकेशन देना है. तो उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की. तो इट्स लाइक दिस, एंड ये जो रोल मॉडल है उसकी बात की गई है यहाँ पर, वो गांधी जी का ही रोल मॉडल है. तो आई फील वेरी प्राउड, बट सम ऑफ I feel कि this time it's like education is only business. You really हैव टू बी लाइक कि आपको जो गांधी जी की संस्था है उनको उन्होंने बनाई है और उन्होंने ये सब उन बच्चों के लिए किया था, और आप अभी बिजनेस खेल रहे हो खुद के फ़ायदे के लिए, विच इज़ नॉट गुड. एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल who can't afford the fees. And the national policy of education was modified in 1992. तो ये जो पॉलिसी है फर्स्ट 1986 में आई थी, फिर उसको रिवाइज किया गया 1992 में. ठीक है. दिस न्यू पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम of the government. According to this policy, common national level tests were introduced, and this helps in maintenance the professional standards. This solves the problem overlaps and reduces physical, mental and financial burden on students and their parents due to मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो ये जो रिवाइज पॉलिसी है उसका मेन मोटो ये था कि जो बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर उसको कम करना है, और जो कई सारे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसका बर्डन कम हो, यही उनका मोटो था. और इट्स ऑल अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. सो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेट्स, एंड जो रिवाइज जो पॉलिसी है वो कब आई थी वो भी हमें डेट याद रखनी है. सो और इसमें कौन से जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हैं वो हमें याद रखने, डिटो हमें रट के नहीं जाना है, बट माय पॉइंट इज़ दैट कि यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या कहना
कहना चाहते हैं वो हमें खाली याद रखना है. सो इट्स ऑल अबाउट दिस एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992. तो इसकी जो रिवाइज पॉलिसी है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच.